and welcome to VLearn. This is session number 10 of MS Office. In this session, we are going to cover following topics: color schemes, graphics, slide effects, master slide, saving and printing, and lastly tips that are related to make our presentation more effective. First of all, color scheme. Color scheme includes how to change the color which is already set on that particular slide. For that, we go for format menu, then click the slide color scheme. जैसे हम स्लाइड कलर स्कीम को क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे हम कलर स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं. इफ वी क्लिक ऑन अप्लाई तो वो सिंपली उसी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगा जिस स्लाइड पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं. और इफ यू वांट दैट पर्टिकुलर स्कीम टू बी अप्लाइड ऑन होल द प्रेजेंटेशन, तो सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल. स्कीम्स को यूज के अंदर आपके पास एक कस्टम टैब है. कस्टम टैब अलाउ यू टू सिलेक्ट और टू चेंज सिलेक्टिवली the applied design features. means background color, text line, shadows, title text. means हमें एक opportunity देता है कि according to our choice we can select the color of all the objects which are inside our slide. Like this is the presentation, and in this presentation I want to change the color scheme. So I simply go for format menu. In the format menu I just select the background. बैकग्राउंड के अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ जो बैकग्राउंड कलर जो हम चेंज करना चाहते हैं. लाइक हमने यहाँ पे मोर कलर्स पे क्लिक किया तो कुछ भी कलर जो आप अपनी चॉइस का सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं. क्लिक ऑन ओके. और यू कैन आल्सो मेक it more effective by adding certain effects also. So जो भी effects, texture, patterns जो भी आप सेट करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर पिक्चर बैकग्राउंड पे सेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. ये सारे आपके स्टाइल्स हैं. सिंपली क्लिक ओके. इफ यू वांट टू प्रीव्यू इट जस्ट क्लिक ऑन प्रीव्यू. वो प्रीव्यू आपको शो कर देगा. इफ यू वांट टू अप्लाई इट to select a slide, just simply click apply, or to make it applicable to all the slides in the presentation, click on apply to all. So in this way you can change or customize your slides slides formatting according to your choice. Next is the graphics. Now inserting images to PowerPoint. Click on the slide that you want to insert the image to. Select insert option, pictures, and from particular options you can select from file, from clip art, anything you want. On the insert picture dialog box, find and double click on the image so that the desired image will be appeared on the slide itself. After inserting the image, you can also format that particular image by just click on format, pictures, and make your selection on the dialog box that will be appeared. Select view, toolbars, and picture toolbar so that the picture toolbar will be appeared on the screen if it is not appeared. Use the first 5 icons of the picture toolbar just to make changes in the image color, contrast, brightness, and more. And finally you can also use the cropping tool to just crop down your image, means to cut image. Then grouping enables you to make multiple images merge into one image. means बहुत सारी इमेज आपने बना रखे हैं, आप एक के अंदर दूसरी को merge करना चाहते हैं, so just simply go for grouping option. You can also ungroup the images by just clicking on ungroup, and order allow you to change the order of the overlapping images at any time you want. Like this is the options. One is group, second is ungroup, and third is the order. Now we see it one by one in the presentation. Like this is the presentation. In this slide I just want to, in this presentation I simply insert a new slide, and in this I'll select the layout to be this one only so that I can insert picture in this. You can select picture from insert picture and then select
the desired picture or simply click on these buttons so that you can insert picture of your choice. You can also insert clip art by clicking on this. Pictures will be here. जो भी पिक्चर ऐड करनी है सिंपली क्लिक ऑन द पिक्चर, डबल क्लिक ऑन इट एंड द पिक्चर विल बी अपीयर्ड ओनली. अब आपको पिक्चर टूल बार देखना है तो टूल बार जो अपीयर नहीं हो रहा, सिंपली गो टू व्यू मेन्यू, क्लिक ऑन द टूल बार एंड इन दिस सिंपली सिलेक्ट पिक्चर सो दैट पिक्चर टूल बार विल बी अपीयर्ड. जैसे आप क्लिक करेंगे ये पिक्चर टूल बार अपीयर हो जाएगा. फर्स्ट 4 ऑप्शंस are for changing the picture or inserting a new picture. This one for changing the color, then contrast, and after that the brightness. This option is for cropping the image, rotating the image, providing it a line style, and many more. So by using these options I can format my image accordingly. If I want to insert a new image, I simply go for insert picture. जो भी आपने कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन में कोई भी इमेज इंसर्ट कर रखी है, आप सिंपली यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट. और यू कैन ऑल्सो मेक डिफरेंट शेप्स by going this auto shape options. From picture category select auto shapes. जैसे आप auto shape option select करेंगे बहुत सारी pictures appear हो जाएंगी and you can insert the picture shapes. Simply click it and drag it. आप यहाँ से fill color option choose करके इसका color change कर सकते हैं. जो भी pictures चाहिए वो एक साथ यहाँ पे insert हो सकती हैं. You just select the picture and drag or drop it. अब मुझे इन सभी pictures को group करना है तो for this particular grouping I'll just first select all the images. So press shift key and then select all the image. As soon as you select it, you can see सारे select हो चुके हैं. Just right click on it and in grouping option you can group the image. Like first select the square option. Press shift key, select circle and grouping option select group. Now you can see ये पूरी जो अलग अलग colors आ रहे थे, अलग अलग coordinates आ रहे थे image के, अब वो एक whole boundary बन गई है. अब जब मैं इसे move करूँगी तो वो एक group की तरह move करेंगे, मुझे अलग अलग move करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही group किया है वैसे हम इसे ungroup भी कर सकते हैं. Simply यही selection रहेगा, right click on it, from the grouping option select ungroup. तो जैसे आप देख सकते हैं, अब इस पिक्चर्स को जब मूव करेंगे तो दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करें बिकॉज नाउ आई मेक इट अनग्रुप्ड. अब मुझे इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर जो ओवल है और आपका एक डायगोनल शेप में स्क्वायर है और वी कैन से पैरेललोग्राम है, मुझे इनकी ऑर्डरिंग चेंज करनी है. मीन्स मुझे सर्कल को बैक में भेजना है और पैरेललोग्राम को फ्रंट में लेके आना है. तो सिंपली आई सिलेक्ट द पैरेललोग्राम, राइट क्लिक ऑन इट एंड गो फॉर ऑर्डर ऑप्शन. In order option select bring to front or bring forward. जैसे आप उसे bring to front और forward select करेंगे वो forward आ जाएगा और पूरी पहले वाली इमेज जो forward थी वो backward चल जाएगी. So this is the ordering of shapes which we can perform in the presentation according to our choice. So in this way I can make my presentation more effective by inserting certain images, certain shapes and apply ordering on this. नेक्स्ट स्लाइड इफेक्ट्स. नाउ प्रेजेंटेशन के अंदर हमने स्लाइड्स बना ली, टेक्स्ट एंटर कर लिया और उसके अंदर हमने कुछ इमेजेस, ग्राफिक्स सब कुछ इंसर्ट करके उसे एक इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन बना दिया. नाउ कम्स हाउ वी कैन एनिमेटेड द टेक्स्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट मीन्स एनी शेप, ग्राफिक्स, image, picture, whatever in the slide. So we can animate each and every object which is present in the slide. This is the custom animation option. You can see कि वो आपको ये बता रहा है कि आपकी जो स्लाइड है उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर अवेलेबल है. लाइक टाइटल, टेक्स्ट, एनी पिक्चर फ्रेम. वी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी हैव 3 पिक्चर फ्रेम्स. सो जिनको भी आपको एनिमेट करने हैं आप इन सबको सिलेक्ट करिए. दीज आर द इफेक्ट्स. जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है सिंपली क्लिक ऑन इट, इफेक्ट स्लाइड चेक करिए. देन कम्स द साउंड ऑप्शन. उन इफेक्ट्स पर अगर कुछ साउंड इफेक्ट डालना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं.
एंड आफ्टर एनिमेशन आप कुछ ऐसे भी शो कर सकते हैं कि कलर के अंदर कुछ डिफरेंस आ जाए कुछ इंडिविजुअल पार्ट पे, सो दैट हमें पता चले कि जो एनिमेशन हमने अप्लाई करी थी वो अप्लाई हो चुकी है या फिर वर्कआउट कर चुके हैं हम उसे. एज वी कैन सी दिस इज आवर स्लाइड. मुझे यहाँ पे कुछ कस्टम एनिमेशन अप्लाई करने हैं अपनी स्लाइड के ऊपर. सो आई सिंपली सिलेक्ट द स्लाइड एंड देन गो फॉर स्लाइड शो मेन्यू. In slideshow we just select custom animation. Custom animation जैसे हम select करेंगे, हम जो भी object select करेंगे उस selected option के साथ हमारे पास कुछ effects appear होंगे. Entrance, emphasis, exit और motion path. तो जैसे ही हम चाहते हैं कि जब ये object हमारी presentation में appear हो तब क्या परफॉर्म करें, मीन्स कैसा स्टाइलिंग वो ऑप्ट करें, तो हम ऐसी एंट्रेंस पे सिलेक्ट करके वो स्लाइड को ऑप्ट कर सकते हैं. लाइक आई सिलेक्ट द बॉक्स ऑप्शन, तो ये वो ऐसे अपीयर होगा, मीन्स हमने उसका प्रीव्यू देखा. डायरेक्शन अभी इनवर्ड थी, आप चाहें तो आउटवर्ड कर सकते हैं. बाय दिस ऑप्शन वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमेटेड पार्ट. एक पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर एनिमेशन जो है, क्योंकि ये कस्टम एनिमेशन है, कस्टम एनिमेशन मीन्स अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन अप्लाई करना पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. और एक स्लाइड के अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. लाइक इन दिस स्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ चार्ट और सेकेंडली वी हैव अ टाइटल. सो मैं टाइटल के ऊपर भी इसको सिलेक्ट करके एनिमेशंस लगा सकती हूँ. लाइक इन दिस आई सिलेक्ट द एम्फेसिस स्टाइल एंड इन एम्फेसिस स्लाइड आई सिलेक्ट स्पिन ऑप्शन. सो यू कैन सी अ स्पिन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट. जो आपका टाइटल है एनिमेटेड ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसके अंदर हमने एनिमेशन अप्लाई करी है ऑफ स्पिन टाइप. Now if we want to see it, just go to slideshow and view show. As the slide comes, this is the slide on which we apply the animation. जैसे मैंने एसेट के ऊपर एनिमेशन बाद में लगाया था और चार्ट के ऊपर पहले, तो सबसे पहले वो एनिमेशन चार्ट के ऊपर शो करेगा. लाइक जैसे ही मैंने एरो की प्रेस किया, पहले चार्ट के ऊपर जो स्टाइलिंग अप्लाई करी थी वो विजिबल हुई एंड आफ्टर दैट वो स्टाइलिंग जो हमने एसेट्स के ऊपर अप्लाई करी थी. तो दिस इज द ऑर्डरिंग ऑफ कस्टम एनिमेशन ऑल्सो. लाइक हम चाहते थे कि यहाँ पे ऑर्डरिंग चेंज हो जाए, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन इट एंड ड्रैग इट. सो दिस टाइम टाइटल विल बी अपीयर्ड फर्स्ट एंड देन कम्स द चार्ट. एज वी कैन सी दिस इज द स्लाइड शो and now you can see कि एसेट के ऊपर सबसे पहले अप्लाई हुआ and after that on the chart. So in this way we can apply custom animation in our slide and that to make changes it. If you want to remove that particular animation from our slide, simply select the object and then select the animation style and click on remove. जैसे आप remove पे क्लिक करेंगे वहां से वो उसको remove कर देगा. यहाँ पे स्लाइड पेन के अंदर आप देख सकते हैं जो 6 नंबर स्लाइड है और 7 नंबर स्लाइड है. 7 नंबर स्लाइड में एक स्टार ऑप्शन बन के आ रहा है. ये स्टार ऑप्शन ये शो करता है कि ये पर्टिकुलर एक ऐसी स्लाइड है जहाँ पे हम एनिमेशन अप्लाई कर चुके हैं. बाकी और जितनी भी स्लाइड्स हैं जहाँ पे हमने अप्लाई नहीं किया वहाँ पे स्लाइड नंबर के नीचे ब्लैंक स्पेस है, कोई स्टार नहीं है. जबकि 7 में जो हमने एनिमेशन अप्लाई करे हैं वहाँ पे एक स्टार ऑप्शन अपीयर हो रहा है. सो इन दिस वे वी कैन सेट कस्टम एनिमेशन इन आवर पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन on a slide. Then comes the slide transition. स्लाइड एनिमेशन जो होता है वो अप्लाई होता है एक पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर अलग अलग. बट जो स्लाइड ट्रांजिशन है दैट मीन्स जब हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में ट्रांसफर कर रहे हैं तब क्या एनिमेशन या तब क्या इफेक्ट्स हम देखना चाहते हैं वो हम सेट करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन में. Like in this we select slideshow and this time we select slide transition. So these are the types. जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली क्लिक ऑन इट और वो अकॉर्डिंगली आपको ऑटो प्रीव्यू शो कर रहा है. जैसे आप सिलेक्ट करेंगे इन सभी ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. जस्ट सिलेक्ट इट. यहाँ पे हम स्पीड रेगुलेट कर सकते हैं. दिस इज फॉर साउंड ऑप्शन. और अगर आप चाहते हैं कि जो भी अपीयर हो रहा है वो माउस की क्लिक पे अपीयर हो तो हम इसको क्लिक करेंगे. अदरवाइज वी कैन सेट टाइम ऑल्सो, मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड 2 सेकेंड स्लाइड्स ऑटोमेटिकली अपने आप ट्रांजिट कर जाए फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर.
so we can also do that. अब मैंने इसको अप्लाई किया है तो अभी ये सिर्फ करंट स्लाइड पे अप्लाई हुआ है. अगर मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर कोई और अप्लाई हो तो वी कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस. एंड इन दिस आई विल सिंपली चेंज द स्लाइड ट्रांजिशन. So in the whole presentation we have 3 transition styles. Now go for slideshow. As you can see इसके ऊपर हमने ट्रांजिशन लगाया था तो वो अपीयर हुआ. बाकी जिस स्लाइड पे ट्रांजिशन नहीं लगाया है वो एज इट इज अपीयर हो रही है, और जिस पे लगाया है उसके ऊपर वही स्टाइल जो उसके साथ अप्लाई किया गया है. सो इफ आई वांट कि सारी की सारी प्रेजेंटेशंस में जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी स्लाइड्स एक ही तरीके का जो ट्रांजिशन है उसे ऑप्ट करें, तो सिंपली सिलेक्ट द स्टाइल, मेक द डिजायर्ड चेंजेस एंड देन अप्लाई टू ऑल स्लाइड. जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे ये सारे ट्रांजिशन सबके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे. नाउ यू कैन सी फ्रॉम स्लाइड शो सारी की सारी स्लाइड्स ने उन्हीं सभी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है ट्रांजिशन के जो हम अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज द मास्टर स्लाइड, special slide that controls the many formatting features which are available to all other slides of the same presentation. That means अगर मुझे टाइटल एंड कंटेंट पे कोई स्पेसिफिक स्टाइल चाहिए तो वो मैं मास्टर स्लाइड में जाके सेट कर सकती हूँ, सो दैट कि हर बारी मुझे जब भी मैं टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड चूज करूँ मुझे वो चेंजेस ना करने पड़े. मास्टर स्लाइड allows us to set the font, color, objects, graphics and any other characteristics that all slides can share. Like if I want to create a new presentation, I simply go to file menu, click on new and select a blank presentation. Now from the view, I go to master menu and in master menu select the slide master. This time आप देख सकते हैं कि जो आपका slide master है वहाँ पे click to add title की जगह लिखा हुआ आ रहा है click to edit master title. That means this time you are inside a मास्टर स्लाइड. जो भी चेंजेस हम इसमें अप्लाई करेंगे दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन आवर प्रेजेंटेशन. लाइक इन दिस आई सिंपली चेंजेस द कलर ऑफ द टाइटल बाय जस्ट गोइंग टू दिस मेन्यू एंड वी कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल और इंक्रीज द साइज, डिक्रीज द साइज, मोreover changing the alignment. We can also change the position of the footer area. Like this is the slide number, I just shifted to the left hand side above the date and time option. जब भी सारे चेंजेस जो आप डिजायर चेंजेस करना चाहते थे वो अप्लाई हो जाएं, जस्ट सिंपली क्लोज द मास्टर व्यू. जैसे ही आप क्लोज करेंगे आप देख सकते हैं कि जो भी चेंजेस हमने वहाँ अप्लाई किए थे ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे. सो इससे मुझे ये बेनिफिट है कि हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उन सभी चेंजेस को अडॉप्ट करेगा जितनी बार भी मैं उस स्लाइड्स के अंदर चेंजेस को यूज करूंगी. सेम वैसे ही लेआउट चेंज कर सकते हैं, जो भी लेआउट आप चाहते हैं, और वो स्टाइलिंग वही रहेगी जो हम अप्लाई करना चाहते थे. सो इन दिस वे वी कैन यूज द मास्टर स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन. Now saving and printing. Save. When you save a new presentation for the first time, the PowerPoint displays a dialog box similar to the open dialog box. And if एक बार सेव कर चुके हैं तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करने से कोई डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं होगा, वो सेम उसी नेम से उसे सेव कर देगा. For saving we have another option named Save As. Use the Save As command whenever you want to save a copy of the current documents with a different name. अगर मुझे उसी करंट प्रेजेंटेशन को एक दूसरा नाम देके सेव करना है तो आई गो फॉर सेव एज ऑप्शन. द न्यूली सेव्ड कॉपी बिकम्स द एक्टिव डॉक्यूमेंट. As I want to save this presentation, I'll go to File menu and click Save option. जहाँ पे आपको सेव करनी है लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, फाइल नेम में उसका डिजायर्ड नेम एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन. नेक्स्ट इज this is a save as option. In this we have file name और save type, जिस भी टाइप से आप उसे सेव करना चाहते हैं. Now for printing
We can print our presentation as a slide, notes, handouts और even outlines also. So ये depend करता है कि आप अपनी slide का content कैसे present करना चाहते हैं. For this particular, you go for file menu, select print, and then after this you will be getting a print dialog box and make the desired changes in the dialog box and then click print. This is a print dialog box. यहाँ पे first option में आप name specify करेंगे अपने printer का. This is a print range. अगर आपको handouts print करने हैं तो print what option के अंदर आप handouts select कर सकते हैं. Slides print करनी है, slides, note page और outline जो भी आप print करना चाहते हैं यहाँ पे select कर सकते हैं. जब भी आप ये desired changes कर लें, click on OK. As soon as you click on OK button, वो print कर देगा. Like in this, we click on file, then click print. जैसे हम print पे click करेंगे यहाँ पे हमें printer select करना है. This is a print what option. If we select handouts तो वो हमें option देगा कि हमें per page 6 slides देखनी है. Maximum to maximum हम 9 देख सकते हैं and minimum to minimum 1. But in slide हम एक पेज पे एक ही slide देखते हैं. This is for color, grayscale or black and white view. So when we make all the desired changes, we simply click OK. As soon as we click OK, the print will be start. Now tips. Select or create your own theme. Means अगर हम presentation को बहुत effective बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी खुद की themes को create करें और उन्हें select करें. We must use video or audio to convey our message with more effectiveness. Then main emphasis करने के लिए अपने key points पे you just use graphics. Use animation and transition wisely. Wisely means ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी presentations में आपने transitions and animations ही fill कर दिए और ये भी नहीं कि आपने उसे just use भी नहीं किया. Wisely use कीजिए means जहाँ necessary है वहाँ पे use कीजिए, otherwise skip it. Start by outlining your presentation. That means presentation start करने से पहले first slide must be the title slide and the content slide with just overview about all the presentation content. Use masters and layouts to save time and help get better result. Because अगर एक बारी settings करके save कर दी जाए तो हमारे लिए बहुत effective होगा कि मुझे बस उन्हीं settings को use करना है in the whole presentation. Consider difference between the print and the on-screen presentation. Use note pages, handouts to help the deliver the particular story. Keep file size manageable and know exactly what your viewers will see. Means अपनी presentation को पहले एक बारी खुद देखिए as a viewer so that कि आपको idea हो सके कि जो presentation आपने बनाई है वो एक effective presentation है या नहीं. Now do it yourself. First, explain steps to insert the images in the PowerPoint. आपको कुछ steps लिखने हैं जिसके थ्रू आप images को insert कर सकते हैं. And secondly, explain steps to format the image in the particular PowerPoint slide. So, thank you. Happy learning. Be learning.